Hello friends, welcome to my YouTube channel Beginners Pathshala. So today I am going to explain poetry from class 10th, The Tale of Custard the Dragon. Poetry is very important and is coming in your term 2 board examination in English. So The Tale of Custard the Dragon poetry. What is the theme of the poetry? Poetry is having multiple themes. I am going to describe what are the multiple themes of the poetry first. So, first is we should never be judged on the basis of appearances. Means हमें कभी भी किसी को उसके appearance के base पर judge नहीं करना चाहिए. If suppose somebody is looking very serious or very sober, it doesn't mean that he is serious or sober in reality. Next theme is someone's appearance doesn't make the person powerful. If somebody is looking powerful and courageous while you are looking at him or looking at her, it doesn't mean that he or she is powerful in reality. अगर कोई देखने में पावरफुल लगता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. सो अपीयरेंस के बेसिस पर हम उसको जज नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज एवरीवन हैड हिज ऑन कैपेसिटीज. हम सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस और कैपेसिटीज होती हैं. नेक्स्ट इज प्रेजेंट थीम सच एज अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी. पोइट्री प्रेजेंट करती है एक ऐसा थीम लाइक रियलिटी वर्सेस अपीयरेंस. एंड courage, love and jealousy. Poetry is also depicting the theme of jealousy, courage and love. So these are the multiple themes of the poetry, The Tale of Custard the Dragon. So friends, after discussing the theme, moving to the next. And next is important points of the poetry. Now I'm going to explain some important points about the poetry, The Tale of Custard the Dragon. First is written for children. The writer has written poetry for the children. It is clear while you are reading the poetry. Poet tries to present a heroic sketch of characters described in the poem. In the poetry, poet was continuously trying to explain his characters like heroic characters. Means उसने अपने characters को continue poetry में मतलब poetry में explain किया है एक heroic characters के जैसे. Heroic characters were meant for creating a humorous effect. And why poet is creating his characters heroic? Because he wished to make an amusing effect. यानी कि उसको humor या फिर amusement के लिए जो चीजें चाहिए थी वो उसके heroic characters के through बाहर आ सकती थी. So that's why he is using heroic characters. It parodies the excess of self-confidence that makes an appearance as a fool in crisis. Children parodies means imitation, means in imitation the excess of self-confidence. जब आप किसी की नकल करते हैं, किसी को इमिटेट करते हैं, जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है वहां हम इस तरह नहीं नजर आने चाहिए जैसे कि कोई फूल हो क्राइसिस के बीच में. जब बहुत बार क्राइसिस का टाइम आता है तो जो एक फूल होता है वो भी बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की तरह बिहेव करता है. मूविंग टू द नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ फेबल. फेबल मीन्स शॉर्ट स्टोरी टीच अ लेसन विद एनिमल कैरेक्टर्स. जो स्टोरी है वो एक फेबल की फॉर्म में है, फेबल का एक एग्जाम्पल है. टोटल 15 स्टैंजाज आर देयर इन दी पोएट्री. पूरी पोएट्री में टोटल 15 स्टैंजाज हैं. ईच हैविंग 4 लाइन्स इन इट. हर एक स्टैंजा में 4 लाइन है. ओनली द 13th स्टैंजा कंटेन्स 6 लाइन्स except 13th stanza. 13th stanza is having 6 lines except 13th stanza. Every stanza is having 4 lines in it. Rhyming scheme also creates humorous effect in the poem. The poet is using rhyming scheme as he also wished to create humorous effect in the poetry. उसने पोइट्री में जो rhyming scheme है उसका यूज भी इस तरह किया है कि वो अपनी पोइट्री को amusing और humorous बना सके. फिर से the punning quality. Pun is a figure of speech and that means double meaning. मतलब एक बात के दो मतलब. So the punning quality of the rhyming words present irony. Irony means strange or amusing.
जो पनिंग क्वालिटी मतलब कि जो एक बात के दो दो मतलब इस पोएट्री में बहुत सारे वर्ड्स के हैं, उससे भी अम्यूजमेंट पोएट्री में हमें देखने मिलता है। मेट्रिकल स्कीम ऑफ द पोएम डजंट फॉलो द फॉर्म ऑफ अ बैलेड। जो इसका जो मेट्रिकल थीम है, जो मेट्रिकल की स्कीम है, वो किसी बैलेड की फॉर्म को प्रेजेंट नहीं करती है। लाइन्स आर मोस्टली कंपोज इन एन इयाम्बिक मीटर। जो लाइन्स है बेसिकली वो इयाम्बिक पेंटामीटर में कंपोज की गई है। यहाँ पर पोइट यूजेस स्पॉन्डीज इन दी पोएम। इट मीन्स अ फूड कंसिस्टिंग स्ट्रेस्ड सिलेबल। सिलेबल मीन्स मात्रा, इंग्लिश में मात्रा को सिलेबल बोलते हैं। तो एक ऐसा फूड जहाँ पर स्ट्रेस्ड सिलेबल हो वो उसको आगे कंसिस्ट करता है पोएट्री में बहुत सारी जगह पर। सो these are some important points about poetry, the tale of Custard the Dragon. So children, now moving to the summary of the poem, the tale of Custard the Dragon. The poem, the tale of Custard the Dragon is a humorous ballad. जो पोइट्री है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, एक ह्यूमरस यानी कि एक ऐसा मतलब मीन्स एक बैलेड है जिसमें बहुत सारे फनी मूवमेंट्स हैं और बहुत सारी हंसी वाली चीजें हैं। एक राइमिंग वर्स, इट टेल्स द स्टोरी ऑफ कस्टर्ड। ये एक राइमिंग वर्स में मीन्स एक राइम में हमें स्टोरी बताता है कस्टर्ड द ड्रैगन की, हु लिव्स विद बेलिंडा, जो कि रहता है एक लड़की के साथ जिसका नाम है बेलिंडा, एंड हर अदर एनिमल फ्रेंड्स, और उसके साथ उसके और एनिमल फ्रेंड्स भी रहते हैं जो हैं अ किटन, अ माउस एंड अ डॉग। हिज फ्रेंड्स बोस्ट ऑफ देयर ब्रेवरी बट प्रूव द अदर वे राउंड। उसके जो फ्रेंड्स हैं किटन, माउस एंड डॉग, वो हमेशा अपनी ब्रेवरी यानी कि अपने करेज के बारे में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर बातें करते हैं, बट व्हेन इट्स टाइम, जब टाइम आता है वो बिल्कुल एकदम से दूसरे उसके ऑपोजिट निकलते हैं, यानी कि बिल्कुल भी वो ब्रेव नहीं निकलते। कस्टर्ड हु अपीयर्स टू बी अ कावर्ड प्रूव्स टू बी द ब्रेवेस्ट। कस्टर्ड जो कि हमेशा एक कावर्ड के जैसे अपीयर होता है, वो सबसे ज्यादा ब्रेव दिखाई देता है मुसीबत के टाइम पर। When it confronts a pirate whom the fights and couples, जब एक पायरेट के साथ फाइट होती है तो जो कस्टर्ड है वो बहुत ज्यादा ब्रेवरी के साथ फाइट करता है और बहुत करेज के साथ उसका सामना करता है। बेलिंडा lived in a white house with ink, a black kitten. बेलिंडा एक व्हाइट बहुत अच्छे से मैंशन में रहती थी जिसके साथ इंक जो थी एक ब्लैक किटन, मीन्स उसने जो ब्लैक किटन थी उसका नाम रखा था इंक। ब्लिंक अ ग्रे माउस, उसके पास एक ग्रे माउस था जिसको वो बुलाती थी ब्लिंक। मस्टर्ड अ येलो डॉग, उसके पास एक डॉग था येलो कलर का जिसको वो मस्टर्ड बुलाती थी। एंड कस्टर्ड अ ड्रैगन एंड अ रेड वैगन, और दूसरा था एक ड्रैगन मीन्स जिसको वो बुलाती थी कस्टर्ड। दे ऑल एक्सेप्ट कस्टर्ड बोस्टेड ऑफ देयर ब्रेवरी, वो सारे के सारे कस्टर्ड के सामने हमेशा अपनी ब्रेवरी की बातें करते थे और उसको बहुत ज्यादा परेशान करते थे बोल करके वो बिल्कुल भी ब्रेव नहीं है, अपने नाम के बिल्कुल ऑपोजिट है मतलब ड्रैगन के। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल ऑफ बियर्स, यानी कि जो बेलिंडा थी वो इतनी ज्यादा ब्रेव थी जैसे कि बैरल ऑफ बियर्स हो। इंक एंड ब्लिंक कुड चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक इतने ज्यादा फास्ट और टीरियस थे कि वो स्टेयर्स से नीचे दौड़ते हुए लायंस तक को चेज कर सकते थे। मीन्स अ कंपैरिजन इज मेड हियर, यानी कि जो इंक और ब्लिंक है उनको कंपेयर किया गया उनकी स्पीड को लायन की स्पीड के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट इज मस्टर्ड कुड बी एज ब्रेव एज अ टाइगर, जो मस्टर्ड था वो ऐसा ब्रेव हो सकता था जैसे कि कोई टाइगर, बट कस्टर्ड अपीयर टू बी अ कावर्ड बिकॉज ही ऑलवेज क्राइड फॉर अ सेफ केज। लेकिन जो कस्टर्ड था वो सबसे ज्यादा कावर्ड था क्योंकि वो हमेशा सबके परेशान करने के बाद सिर्फ रोता रहता था और इधर उधर रहता था। अ पायरेट वंस एंटर्ड इन रेज, एक दिन एक पायरेट ने घर के अंदर एंटर किया थ्रू द विंडो के थ्रू। ऑल गॉट स्कैर्ड एंड रैन अवे, सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। और डिसअपियर्ड एक्सेप्ट कस्टर्ड, सब वहां से डिसअपियर मतलब गायब हो जाते हैं कस्टर्ड को छोड़कर। हु फेस्ड हिम बोल्डली, और कस्टर्ड उसको बहुत ज्यादा ब्रेवली मतलब बहुत ज्यादा बोल्डली उसको फेस करता है, उसको अटेम्प्ट हिम उसके ऊपर अटैक करता है। हिट हिम हार्ड,
उसके ऊपर बहुत ज्यादा हार्ड हिट करता है विद हिज फोर्सफुल टेल, अपनी बहुत फोर्सफुल टेल के साथ, एंड गॉबल एवरी बिट ऑफ हिम, और उस पूरे के पूरे को निगल जाता है, मतलब कि गॉबल कर जाता है। ऑल ऑफ देम फेल्ट ऑब्लाइज्ड टू कस्टर्ड फॉर सेविंग देयर लाइव्स, और उस वाले इंसिडेंट के बाद सब जो थे कस्टर्ड को बहुत ज्यादा उसके लिए थैंक यू फील करते हैं, क्योंकि कस्टर्ड ने उन सबकी लाइफ को सेव किया था। बट आफ्टर सम टाइम दे स्टार्टेड बोस्टिंग ऑफ देयर ब्रेवरी अगेन, लेकिन फिर से कुछ टाइम के बाद वो सब अपनी अपनी बातें फिर से पहले की तरह अपनी बोस्टिंग यानी कि अपनी तारीफ खुद से करना शुरू कर देते हैं। बट उस वाले इवेंट के बाद जो कस्टर्ड था वो भी कावर्ड नहीं रहा था, ही वॉज ऑल्सो ब्रेव आफ्टर दैट इंसिडेंट। So this is the summary of the poem, The Tale of Custard the Dragon. Now after the summary, moving to the next, and next is poetic devices in the poetry Custard the Dragon. So simile, as I have explained all poetic devices already for class 9 to 12. So after that, first is simile, and where is simile in the poetry? Sharp as mustard, as brave as barrel, full of beards, as brave as tiger in rage, mouth like fireplace, his tail like irons. So children, you can see that everything is having comparison. Means in simile, a comparison is made between two different things, different objects, and words of comparison are as, like, and so. So here, like sharp as mustard, as is used for the comparison here, and mouth like fireplace, like is used for the comparison here. Moving to the next metaphor. In metaphor, comparison is also there. We compare two different things, different objects, but without using comparison words, means without using as, like, and so. So for metaphor, daggers on his toe, chimney for a nose. Chimney is compared with nose, but without comparison word, again you can see. Next is repetition. Little, realio, trulio, nice, safe, cage, and etc. Next is alliteration. Alliteration is in lived in a little. Now the name dragon was carved, and she called him Custard. Custard cries for a safe, nice cage, laughing in the little red wagon. She shook the house suddenly. Suddenly they heard a nasty sound. He held in his teeth. His beard was black. One leg was wood, and etc. So these are the literary or poetic devices in the poem The Tale of Custard the Dragon. Children, at last I am going to discuss what is the moral value of the story. What moral lesson does this poetry teach us? First is, we should never underestimate a person based on his looks. हमें किसी भी इंसान को उसके लुक्स के अकॉर्डिंग अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. If somebody is looking very simple, it doesn't mean that he is not able to do anything. Next is, should not believe those who boast about their abilities and appreciate themselves. हमें कभी भी उन लोगों का बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए जो अपनी तारीफ हमेशा खुद करते हैं, अपनी एबिलिटीज को हमेशा खुद से शो करने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि उनके पास चाहे वो एबिलिटीज हो या नहीं हो. एंड नेक्स्ट इज, वी शुड नेवर जज और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट हिम और हिज बिकॉज द वे ही लुक्स और थिंक. कोई जिस तरह सोचता है, if somebody is very serious, if somebody believes in simple living and high thinking, it doesn't mean that he or she is coward. हमें कभी भी किसी को उसकी थिंकिंग के बेसिस पर जज नहीं करना चाहिए. Every human on earth has his own capacities. हम जितने भी अर्थ के ऊपर लिविंग बींग्स हैं, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटीज और लिमिटेशंस हैं, एंड द वे ऑफ हिज लिविंग. और जिस तरह हम अपनी अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करते हैं, हम सबका अपना अपना एक तरीका है. अ पर्सन शुड जज व्हेन ट्रबल अराइजेस, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब मुसीबत आती है, यानी कि मुसीबत के टाइम पर पता चलता है कि कौन कितना ज्यादा ब्रेव, स्ट्रॉन्ग और कावर्ड है. So these are the moral values of the poem The Tale of Custard the Dragon.
Here I have explained a summary of the poem with its multiple themes, with the poetic devices and some other important facts about the poetry. I have also discussed moral value of the poetry with you. I hope कि आपको समझ आया होगा और आपके आने वाले अपकमिंग बोर्ड टर्म टू एग्जामिनेशन में आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी. And thank you for watching.